Hello, hello. You can answer through chat box also. So obtained Z parameters. This is your given circuit. Okay. So my question is, you have to take I1, I2, and as there is third loop present, so therefore I3. So can you just tell me the positions of I1, I2, and I3? Can you just tell me the position of I1, I2, I3? Guys, just make it fast. Please let me know where should I1, I2, I3. Yes, anyone? Anyone? Sir, I1 in Sir, the why? Yes? I1 in the first loop. Okay, I1 is in the first loop. So I just take the orientation of I1 clockwise with respect to positive, negative given in the numerical. And generally for third sem students, it is given in this pattern only. They don't change the polarity. Right? If they change, accordingly you can take the direction of current. So I1 is in first loop. Okay, and where should I2 live? In the second loop. Okay, so this is second loop because V2 is present in the second loop. That is, this is that port which shows I2. Okay, now as loop 3 is also present, therefore I have to consider loop 3. So here the direction of that loop 3 you can take in any direction. You can assume any direction for loop 3 I3. I am just taking that direction of loop 3 is in clockwise orientation. If you take it in a anti-clockwise, accordingly you will get the answers or the values. So now again there are three loops: loop 1, loop 2, and loop 3. Okay. So now let us form and apply KVL to loop 1. Okay. So KVL to loop 1. Can anyone just tell me loop 1 equation? Can anyone just tell me loop 1 equation? You have to form a basic equation for loop 1. Or if you want to form a final equation through inspection, that also will do. यानी वो भी चलेगा क्या फाइनल V1 इक्वेशन? हाँ बोलिए. V1 minus 1 into I1 minus I3. Okay. Minus 2 I1 plus Minus 2 I1 plus I2. is equal to 0. हाँ है ना? तो 1 से जाने वाला करंट आपका I1 लेफ्ट टू राइट है और I3 जो है इट इज राइट टू लेफ्ट, देयरफॉर बोथ आर इन अपोजिशन फॉर 1 ओम. 2 ओम से जाने वाले करंट I1 आपके डाउनवर्ड और I2 इज ऑल्सो डाउनवर्ड, देयरफॉर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो अपोजिट के लिए माइनस साइन और सेम डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन प्लस साइन. Okay, so now just solve this equation. What I get is V1. Okay, so now I just take both the terms on right hand side, that makes minus 1 minus 2 as plus, positive बना देगा. So what I can write is I get as 1 I1 2 I1. So 1 I1 and 2 I1 का addition होगा तो what it gives 3 I1. Okay, then ये तो आपका प्लस है, सो 1 माइनस I3 यानी माइनस I3 होगा, ये प्लस है तो फिर से 2 I2. व्हाट आई गेट इज प्लस 2 I2
माइनस I3। इक्वेशन चेक करते हैं एक बार, ये आपका प्लस हो रहा है बराबर, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। सो व्हाट आई हैव इज 1I1 and 2I1। so 1I1 plus 2I1 gives me 3I1, 1 into minus I3 gives me minus I3, and यहाँ पर आपका प्लस है, so 2 into I2, 2 into I2 it is plus, so therefore this is the value for V1। so now I just make it equation 1। okay, now apply KVL to loop 2। हाँ, loop 2 you can apply it to loop 3 also। okay, loop 2, so loop 2 में equation क्या होगा आपका? Can anyone just tell me fast? There are so many students join the classroom। हाँ, V2 minus V2 minus 3 into हाँ, I2 plus I3 I2 plus I3, very good। minus 2 into हाँ, I1 plus I2। ओके, I1 plus I2 या फिर लूप 2 के लिए लिख रहे हैं, सो आई जस्ट राइट I2 plus I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से आप इन टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेजोगे, सो उसको कंसिडर करते हुए, अज्यूम, इमेजिन करते हुए कि आपका प्लस है और ये भी आपका प्लस है बराबर। सो 3I2 3I3, बट आई हैव टू राइट I1 फर्स्ट, तो ये प्लस है, सो 2 into I1, सो आई एम राइटिंग 2 into I1 फर्स्ट। अब I1 का यहाँ पर एक ही टर्म है ना, सो 2I1। I2 के दो टर्म्स है, एक है आपका 3I2 और दूसरा है 2I2, और दोनों को आप जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5I2। ओके, उसके बाद I3 का यहाँ पर एक ही टर्म है, वो भी प्लस रहेगा 3I3, सो प्लस 3I3। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। लेकिन यहाँ पर स्टिल I3 आपकी इक्वेशंस में प्रेजेंट है और उस I3 को आपको कन्वर्ट करना है, यानी यू हैव टू राइट ओनली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। दोनों इक्वेशंस आपके I1 और I2 के फॉर्म में ही रहनी चाहिए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे? केवीएल आप अप्लाई करोगे लूप 3 के लिए। बताइए लूप 3 में इक्वेशन क्या होगा? अदर देन हिमांशु, आतिश आप हो क्या यहाँ पर? आतिश, अभिलाषा, ऐश्वर्या, शर्वरी, आंचल, बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे ना क्लासरूम में, या सिर्फ हिमांशु ही क्लास अटेंड कर रहा है? तो अगर हिमांशु के लिए मुझे क्लास लेना है तो मैं 10 से 11 की जगह उसकी कंफर्टेबल टाइम से लेता हूँ ना। बेचारे हिमांशु सुबह उठ के यहाँ पर आ जाता है, बाकी लोग क्या यहाँ पर यानी सिर्फ सुनने आते हैं या सिर्फ मोबाइल ऑन करके निकल जाते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल मुझे नहीं चलेगा। आतिश, अगर आप थोड़ा रेंज में आ जाते हो तो बेटर, क्योंकि हिमांशु का आवाज मुझे अच्छे से आ रहा है और उसे मेरा आवाज काफी अच्छे से जा रहा है। अब मैंने ये जो पोजीशन लिया हुआ है, इस पोजीशन पे मैंने पोलैंड से भी इंटरेक्शन किया हुआ है लास्ट ईयर। कैन एनी अदर स्टूडेंट रिप्लाई? ओके, नॉट आतिश, कैन एनी अदर स्टूडेंट रिप्लाई? यस, वन वे कम्युनिकेशन करना है तो फिर मैं क्लास आपके लिए क्यों ले रहा हूँ? मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ ना। आप स्टूडेंट्स को अगर वन वे कम्युनिकेशन करना है तो मैं वीडियोस भेज देता हूँ, वीडियोस आप देखते जाइए। बाईजूस जैसे चल रहा है ना, वेदांतु चल रहा है, तो वैसे ये फलोतांतु चलेगा या नेटवर्क आंतु चलेगा। स्टूडेंट्स यू हैव टू रिस्पॉन्ड। यस सिमरन हेलो बोलिए। सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर सिमरन, बोलिए जल्दी। माइनस बोलिए 4I3 जल्दी। हाँ माइनस 4I3 हाँ माइनस 3 इंटू हाँ I3 प्लस I2 हाँ I3 प्लस I2 माइनस 1 इंटू हाँ हाँ, I3 माइनस I1। वेरी गुड। कितना समय लगता है बच्चा पार्टी यहाँ पर? अननेसेसरी ना आप समय बिता देते हो। ओके, अब सिमरन आगे कंटिन्यू करो बच्चा पार्टी। अब यहाँ पर ओके देखिए, सर। हाँ हम इक्वलिटी की बात तो नहीं भेज रहे उसको। हाँ, अब ये -1 इंटू माइनस I1, यहाँ पर I1 का एक ही टर्म है, सो -1 इंटू माइनस I1 आपको क्या देगा? I1 बराबर। उसके बाद I2 के कितने टर्म्स है? सिर्फ एक ही है, वो है आपका -3 इंटू I2 गिव्स यू -3 I2। परफेक्ट।
वेरी गुड। अब I3 के कितने टर्म्स है यहाँ पर? -4, -3, -1। minus तो I3 -4 -4 minus 7 और -7 या 8 सर 8 है 8 ना? हाँ, -8 I3 इक्वल टू 0। लेकिन मुझे I3 के टर्म्स में चाहिए ये इक्वेशन। सो व्हाट आई डू इज इम्प्लाइज I3 इज इक्वल टू बराबर 1/8 I1। सही है क्या? देखते जाइए प्लीज। 1/8 I1 बराबर -3/8 I2। I3 इक्वल टू 1/8 I1 with माइनस I1 minus 3/8 I2 I2 yes sir है ना? अब 1/8 कितना होगा? 8 8 यानी 0.1, उसके बाद बचेगा 2, आगे भी थोड़ा, उसके बाद 4। तो 8 पंचे 40। तो व्हाट आई sir 0.125 I1 यस I1। और ये होगा आपका अगेन 0.824 है ना? 0.375 I2 0.375 I2 yes। So Simran, thank you so much. This is your equation 3. Okay, 3 now what yes I have to do? Now put 3. equation 3 in 1 and 2 Yes, 1 and 2. Okay, so 1 implies. So V1 is equal to V1 is equal to 3I1 plus 2I2, right? Minus yes sir minus अब I3 हाँ -I3। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर माइनस को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन 3 से। तो माइनस आएगा आपका 0.125 I1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस plus 0.375 I2 0.375 I2 है ना? सो इट yes इज sir इक्वल टू है ना? अब 3 माइनस 0.125 कितना होगा? 0.5 इसी 7 इसी sir 8 2.875 2.875 परफेक्ट, 75 मैं भी करेक्ट हूँ। I1 है ना? और ये होगा आपका प्लस 2.50 2.375 I2 परफेक्ट। So this is the value of I1. Okay, this is the value of this is the value of V1, यानी equation for V1. Now this is your final equation of V1. So equation 4. Similarly, equation 2 implies. अब equation 2 क्या कह रहा है? 2I1, 5I2, 3I3. So V2 is equal to 2I1 plus 5 I2 5I2 प्लस plus अब आपको 3 उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3 है ना? 5 3 15 5 आता है 3 दूनी sir 6 7 3 0.375 0.375 I1 I1 माइनस अगेन 3 5 जा 15 राइट 1 3 7 जा 21 22 2 and 3 so 3 जा 9 1.125 1.125. So this is I2 I2. Okay, so now this gives me what? 2.375 I1, correct है? yes sir Okay, then 5 6 माइनस मुझे नहीं sir माइनस करना होगा ना बच्चा? माइनस है तो 4.125 yes sir yes हाँ, sir तो प्लस 4 4.125 पॉइंट आएगा या नहीं ना? देखो तो 5 माइनस ये कितना आएगा? मेरे ख्याल से 0.875 आना चाहिए। 3.875 sir यस 3.875 sorry sir 3.875 I2 Okay, so this is V1 and V2. This is my equation 4 and 1. Okay, अब मैं डायरेक्टली इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, बाकी तामझाम Yes. करने की जरूरत नहीं है। So this is Z1 Z11 Z12 Z21 Z22. Okay, all of you can see this. All of you can see this. अच्छा थोड़ा लैग चल रहा है ना? Okay, fine. So this is equation 5 V2 वाला। उसके बाद लिखा मैंने Z11 Z12 Z21 Z22। ओके, अब put the values. So now it is 2.875, then 2.875 375 2.375 again 2.375 and 3.875 very good. That's all.
This is your matrix. We have done with second numerical also. मेरे ख्याल से वीडियो लैग कर रहा है, थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है. Yes, sir. हाँ. Anyhow, that recording is going on, so I am going to share that recording also. Okay, now I have only 9 minutes left, and in that 9 minutes, I think it is quite difficult to complete third numerical. So I just circulate 2 numericals for homework. Okay, do you know what is the Laplace transform of inductor? What is the Laplace transform of inductor? Sir, not taught. नहीं, इसमें आपने पढ़ा होगा ना Laplace transformation में? नहीं Sir, that topic is not yet covered in mathematics. 12th में आपको Laplace transform नहीं था? नहीं सर. अच्छा, ठीक है. So Laplace transform of inductor is Ls, and Laplace transform of capacitor is 1 upon Cs. Laplace transform of inductor L is L of S. So यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जैसे आप लोग जानते हैं Laplace transform of क्या कर्ली ब्रैकेट दिया जाता है या स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है? I don't remember. Laplace transform of L ऐसे दिया जाता है ना, and Laplace transform of capacitor. किसी को याद है क्या Laplace transform? सर कभी सुना ही नहीं Laplace transform. Laplace transform सुना ही नहीं. नहीं यार. Sir, square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट नहीं सर, नहीं पढ़ा है सर. हाँ, मैंने खुद ने पढ़ा ही पढ़ा हुआ है नहीं यार. उसके बाद फिर मैथ नहीं में सर, पढ़ा. 12th में नहीं था. अच्छा, नहीं था सर. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, जैसे इन्होंने कहा Laplace transform of L, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, and Laplace transform of C. So Laplace transform of L is L of S, and L of S means L into S, and Laplace transform of C is 1 upon C of S. So that is 1 upon C into S, यानी CS उसको कहा जाता है. तो ये Laplace transform है. सपोज आपको दिया है द वैल्यू ऑफ इंडक्टर, यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर ले रहे हैं. जैसे वैल्यू ऑफ इंडक्टर अगर आपको दिया है L इज इक्वल टू से 1 हेनरी, तो Laplace transform ऑफ 1 हेनरी क्या रहेगा? Laplace transform ऑफ 1 हेनरी, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1s, दैट इज इक्वल टू s. अब आपको Laplace transform ऑफ सपोज कैपेसिटर कैपेसिटर पूछा है एंड इट्स वैल्यू इज से 1 farad. So Laplace transform of 1 farad, Laplace transform of 1 farad, it is equal to 1 upon 1 into s. So that is equal to 1 upon s. ये आपके पास नोट करके रख दे. ये आपके पास नोट करके रखे. Laplace transform of 1 Henry is 1 of S equal to S. Laplace transform of 1 farad is equal to 1 upon 1 into S equal to 1 upon S. अच्छा, अगर आपका ये नहीं हुआ है तो व्हाट आई डू, मैं यूनिट 4 जब शुरू करूंगा, जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है, तो यूनिट 4 के बाद आई टेक यूनिट 4 फर्स्ट, यूनिट 6 के बाद आई टेक यूनिट 4 फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम लोग यूनिट 5 को टच करेंगे, ताकि आपका Laplace ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एक अच्छी बात यह है कि मैथ्स में भी आपको Laplace ट्रांसफॉर्म है, एंड मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल सर्किट पे ही आपको Laplace ट्रांसफॉर्म है ना. तो आपका वहां पर रिवीजन हो जाता है,
और ये कई बार हो सकता है कि आपको असाइनमेंट दिए जाए मैथ्स। ओके, सो दैट मैडम विल डिसाइड, बट आई विल कंप्लीट यूनिट 6 ये रिमेनिंग पार्ट एंड देन आई विल स्टार्ट विद द लैपलास ट्रांसफॉर्म यूनिट नंबर 4। ओके, अच्छा, वन मोर पॉइंट, क्या आप सब लोगों ने ये लिख लिया है क्या? ऑल ऑफ यू डन अप टू दिस पॉइंट? ऑल ऑफ यू डन अप टू दिस पॉइंट? Okay, now students, yes, please write your roll numbers in chat box. दो बार ना लिखे रोल नंबर, एक ही बार रोल नंबर लिखे। कई बार स्टूडेंट्स दो बार रोल नंबर लिख लेते हैं। आज का अटेंडेंस कम है, सीआर, आज का अटेंडेंस कम है, ये ध्यान में रखे बेटा। हेलो 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, हेलो सर। ओनली 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। 33 रोल नंबर। 33 रोल नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे, अच्छा ठीक है, याद रहेगा 33 रोल नंबर, गौरव नागुसे ना, लक्षात आहे। मी आताच अटेंडन्स मार्क करतो मैं। आतिश, 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 गौरव नागोसे का रोल नंबर डाल दीजिए, रोल नंबर 33। हाँ ठीक है बेटा आतिश, ओके। हेलो वहां सर। पे नाम तो लिख रहे हैं आतिश, गौरव नागोसे करके, गौरव नागोसे हेलो सर। 33। हाँ बोल वैष्णवी। सर, मी ते असाइनमेंट जे होतं ते सबमिट केलं, हाँ पण ते रिफ्रेश केल्यानंतर क्लासरूम मध्ये माझं दाखवतच नाहीये सबमिट झालं म्हणून, मिसिंगच दाखवतं. असं 2 वेळा बरं, झालं माझ्यासोबत. तू 1 वाजता मला कॉल करतेस का? मी 1 वाजता तुझं पाहून घेतो ते आहे का मटेरियल अवेलेबल क्लासरूमवर, ठीक आहे? ठीक आहे. ठीक आहे हां सर. दोन्ही ठीक. याच्यात असंच झालं. आधीचं पण तसंच झालं आणि आता पण तसंच झालं. हो, पण तू आता लक्षात ठेवून मला कॉल बॅक कर, कारण मी सपोज कामात व्यस्त झालो तर मग मला लक्षात राहणार नाही। ठीक आहे सर. हां ठीक आहे। रोल नंबर 19 प्रेझेंट. हां तू पाठवलाय ना? ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन लीव, थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो।